We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जंग खत्म हुए 5 दिन भले ही गुजर चुके हों, 12 दिन तक भीषण जंग ये चली हो और दोनों तरफ तबाही बरपी। खुद को अभेद समझने वाले इजराइल भी उस तबाही से बच नहीं पाया। न्यूज नेशन की टीम भी इन दिनों इजराइल में है और वहां के चप्पे चप्पे से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रखी है। इजराइल के तेल अवीव में 22 जून को क्या हुआ था, कैसे बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, देखिए हमारे सहयोगी राहुल डबास की ये खास रिपोर्ट। 22 जून 2025 इजराइल की एक खामोश सुबह। अचानक धमाकों से दहल उठी। ईरान के मिसाइल हमलों ने इजराइल की सरजमी पर तबाही का ऐसा मंजर छोड़ा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस दिन रविवार था, छुट्टी का दिन। स्कूल बंद थे, दफ्तर बंद थे, इसीलिए लोगों को भी कोई जल्दी नहीं थी। घरों में मौजूद लोग दिन चढ़ने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। और करीब 150 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। ईरान के हमलों के निशान अभी भी तेल अवीव की सड़कों पर नजर आ जाते हैं। इस वक्त हम ऐसे ही रिहायशी इलाके में जहां 22 जून को ज़बरदस्त हमला हुआ था, 150 से 200 मकानों को खासा नुकसान पहुंचा था। और एक लड़की भी हमारे साथ बात करने के लिए है। यू वर देयर नियर बाय द लोकेशन व्हेन द मिसाइल स्ट्राइक? Yes. So what happened? Are you feeling safe or you were scared at the time? Scared because it was a boom. इस अपार्टमेंट में सैकड़ों परिवार रहते थे। इस महिला का घर भी इसी अपार्टमेंट में था। पिछले 4 साल से यही उसका आशियाना था। लेकिन 22 जून की सुबह तबाही लेकर आई। Your apartment is inside the destruction. What happened on that date, the 22nd of June? It was a Sunday morning. There was an alarm. We got inside the house shelter, and we heard a huge sound in our house, and that's it. It was very scary. Where is your house? Can you tell us and we can take The white building. The white building is your house. Yes. Do you have any emotions, any memories related to that apartment? You spend a good time with your family there? Yes, we lived there for 4 years, and we love this house very much. And it's gone, and it will be rebuilt. What kind of emotional loss? Loss of your? No, it's just the feeling of not having a home anymore. And Where you are living nowadays? in hotel, the government is giving hotels for the people that are. रविवार होने की वजह से स्कूल भी बंद थे, लिहाजा बच्चों की भी उस दिन छुट्टी थी। इसीलिए अधिकतर बच्चे सो रहे थे। Beta, are you feeling safe right now? What happened at that time? Pretty much. When it happened, like, it was crazy. Before destruction, 10 minutes, 15 minutes before destruction, you got the siren? Your room was the best and safest place in the entire apartment. Yes, yes. So your schools, your studies are open or is it still closed? Now it opened, but before it was closed and everything was closed.
Are you still having a bad dreams of that moment? Not at all. Not at all. तो यहाँ पर देखिए किस तरीके की स्थिति नज़र आती है और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी लगातार उन इमारतों को भी दिखाएं, उन इमारतों को भी दिखाएं जिन इमारतों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लगभग 150 के आसपास वो इमारतें जो लोगों की रिहाइश थी, लोगों का घर था, वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। ये एक इमोशनल ट्रॉमा है। हालांकि जो इज़राइल की तेल अवीव की पुलिस है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। खंडहर में बदल चुके इस इमारत को देखने के लिए हर दिन लोगों की भीड़ जुटती है। कोई अपने पुराने आशियाने को देखने पहुंच रहा तो कई लोग ऐसे भी हैं जो उस दिन सुरक्षित बच गए। Your apartment is safe, the glasses are safe? Yeah, my apartment is safe because I live in a building with an underground shelter, so we were all fine and nothing happened to us. But as you guys can see here, whoever was above ground or didn't have an underground shelter or a safe room could have get seriously hit and injured, as you can see. Feeling safe because it can be happen in anywhere in Tel Aviv. So that's a great question, but as a citizen in Israel in the past, 15, 20 years, this is unfortunately missiles and sirens and alarms is something that we're used to. It's not new to us. It's a new normal condition for the Israeli people, for Tel Aviv local citizens. Yes and no. It's new because of the magnitude of destruction that the Iranian missiles can create or can cause, which are not similar to the ones that are being shot from Gaza. But we had rockets in Tel Aviv more than 10 years ago fired from Gaza. We had rockets from Iraq fired to Israel more than 30 years ago in the Gulf War. So. पूरे इजराइल में एक बात जरूर देखने को मिली। किसी भी इजरायली के चेहरे पर खौफ या दहशत नाम की चीज नहीं दिखी। Because it was a boom. लोगों को अपनी आर्मी और अपने डिफेंस सिस्टम पर भी गुरूर है। Are you still have trust with your air defense system like Iron Dome, David Sting, THAAD? If we would not have had our air defensive systems, what you see here, you can multiply that by around 1,000. And that would have been the damage that we would have suffered. And that's hundreds or thousands of casualties and who knows how many destructed buildings. The fact that this is just one of, I don't know exactly the number, somewhere in the round of 30 direct hits that Israel suffered. Think about the hundreds of missiles that were intercepted. So this is just one. Iranian people and the Israeli people have nothing, like no dispute with each other. The only problem is with the regime. It's a fundamentalist, crazy regime that wants to destroy Israel for basically no good common sense reason. So the fight is not between the two people. I think that the day that the regime will be replaced, we'll have a great relationship with the Iranian people. तो यहाँ पर ये जो युवक थे वो बता रहे थे कि ईरान की सभ्यता जिसे पर्शिया कहा जाता था और यहूदी सभ्यता, प्रॉमिस लैंड, इज़राइल की बेहद पुराने लिंकेज और जो स्थिति नज़र आती है वो मौजूदा शासन की तरफ से है, वो जिहादी शासन जो खमेनेई का है। और अगर खमेनेई चले जाते हैं तो हो सकता है ईरान और इज़राइल के बीच में दोबारा से शांति स्थापित हो सके। और जहाँ तक सवाल है यहाँ के लोकल रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का, उनका कहना है कि अभी भी हमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरा भरोसा है। अगर आयरन डोम नहीं होता, अगर डेविड स्टिंग नहीं होता, अगर THAAD नहीं होता, आरोज नहीं होता, तो जो नुकसान नज़र आ रहा है इससे 1000 गुना ज़्यादा नुकसान होता और शायद 7 अक्टूबर 2023 की तुलना में भी ज़्यादा कैजुअल्टी, ज़्यादा मौत, ज़्यादा लोग घायल नज़र आ सकते थे। क्योंकि न्यूज़ नेशन की इन तस्वीरों से भी स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है कि कैसे 200 घर जो किसी व्यक्ति, किसी महिला के सपनों का घर था, जिसे बनाने में एक पूरी पीढ़ी गुजर गई, उसे बर्बाद होने में चंद पल भी नहीं लगे। तो ये तेल अवीव की रिहायशी इलाकों का नुकसान है जो ठीक एक सप्ताह पहले यानी रविवार के दिन 22 तारीख को, 22 जून को नज़र आया था और उसका दर्द अभी भी यहाँ रहने वाले रिहायशी लोगों के चेहरे पर दिखता है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, तेल अवीव।
तेल अवीव की सड़कों पर सन्नाटा नहीं है। लोग अपने घरों के अवशेषों के बीच खड़े तो हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर भी शिकन तक नहीं। उस भयानक हमले के बावजूद तेल अवीव में जिंदगी न थमी है और न रुकी है। राहुल डबास, टीम न्यूज नेशन, तेल अवीव। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।